Okay, let's start. We'll have a short lecture today, maybe 1 hour. Let's just finish up the remaining part of relativity. ठीक है? So last time जो है हम लोग डिस्कस कर रहे थे relativistic energy and relativistic momentum. And I had told you that when you're writing energy, that is gamma mc square, and when you're writing momentum, that's gamma mv, right? So as well as the fact that the energy and momentum are also related to each other via this equation. So in case you have a situation where you know the energy, or know the energy and want to find the momentum, or know the momentum and want to find the energy, then this is the way to actually go about doing it, right? Energy और momentum का transformation भी होता है. Like if you find that okay, you are in some frame and you find you're observing, let's say, some particle or whatever, and it has some amount of energy and some amount of momentum. Then if you want to see what it would be like from a different frame, the same particle's energy and the same particle's momentum, then there are transformations which are actually exactly like the Lorentz transformation. So they have the same form, and they will basically convert the energy and momentum to that of that other frame. ये हमारे वैसे रिलेटिव हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बिकॉज हमें इतना ज़्यादा इन डेप्थ में नहीं करना है फॉर द ओलंपियाड. The discussion on energy, momentum and forces is relatively superficial, but nevertheless मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, although you don't really require them ever, is that if you want to write, so they have the same form like the Lorentz transformation, quite similar looking. The energy in the in this frame is gamma times, and then you will basically say energy in that frame plus v and the momentum in that frame. And momentum also can be transformed. So gamma times momentum prime plus v energy prime by c square. So देख के तुमको लग रहा होगा कि this is pretty much the Lorentz transformation. One of them is playing the role of delta t and the other is playing the role of delta x, right? These are how you transform them. It's not that important to know. Mainly what you will need to know, if at all there is a problem on relativity, is the formula for energy, the formula for momentum, and this particular relationship between the two. So this relationship is also useful in problems related to, for example, collisions and decays. So if you have like a collision process, relativistic collision process है, जिसमें कोई particle आके दूसरा particle से टकराया and something happens, and then you want to find out कि what is the speed of the particle after this thing, or whatever, anything, then you basically write energy in this form and you are then able to actually solve for whatever is required. I think हम लोग last time एक problem कर रहे थे और वो हुआ नहीं था, मुझे ऐसा याद आ रहा है collision का. सर अभी तक आपने क्या क्या बताया? अभी तक कुछ नहीं, बस मैं रिकैप कर रहा था कि एनर्जी को हम ऐसे लिखते हैं, मोमेंटम को ऐसे लिखते हैं, और उनके बीच में रिलेशनशिप ही होता है. हाँ सर. सर वो क्वेश्चन जो आपने दिया था बस सॉल्व कर सकते हो एक बार? हाँ वो सॉल्व कर देता हूँ. क्या क्वेश्चन था वो, कौन सा वाला था? यहाँ पे मैंने ये बताया बस एक चीज और कि एनर्जी और मोमेंटम का ट्रांसफॉर्मेशन क्या है बिटवीन फ्रेम्स, एंड इट इज क्वाइट सिमिलर टू द लॉरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन, बट दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू. You will not, technically speaking, you should not be getting a question in the Olympiad based on these. You can get problems on simply energy, momentum, and the relationship between the two, but still I've just written it here. Problem क्या था वो? Just remind roughly. सर नीचे से m मास 30 डिग्री विद x एक्सिस 4c/5 से आ रहा है, और फोटोन ऊपर से 30 डिग्री विद x एक्सिस. कितना स्पीड से आ रहा है ये?
4c/5। 4c/5। हाँ सर, फिर आपने अच्छा, लास्ट में और चेंज ऊपर करना से हो रहा था, फोटोन पहले आ रहा कुछ है। और नंबर। हाँ सर। अच्छा, फोटोन भी 30 पे आ रहा है। हाँ सर। फोटोन के बारे में क्या दिया है? लैम्डा दिया है इसका। मेरे को याद नहीं आ रहा एक्चुअली प्रॉब्लम क्या थे। सर उधर कुछ E इन्फॉर्मेशन इक्वल और टू दिया है। mc² लिख दिया था आपने। एनर्जी दिया था इक्वल टू mc²। हाँ सर, वो एनर्जी का वैल्यू। इसका फोटोन का एनर्जी इक्वल टू mc² है। अच्छा, फोटोन का एनर्जी दिया हुआ है। हाँ सर। फोटोन का एनर्जी है mc²। अच्छा ठीक है, फिर ओके, एंड देन द कोलिजन हैपेंस। ठीक है, और फाइंड करना है हमें कि बाद m में क्या डैश होगा। पार्टिकल है जो सीधा जा रहा है और ऊपर एक फोटोन जा रहा है 90 डिग्री टू दैट। m डैश पार्टिकल है जो इधर ही जा रहा है हाँ सर। और फोटोन ऊपर जा रहा है। ठीक है, ओके। तो m डैश निकालना है। m डैश की वैल्यू फाइंड करनी है। हाँ सर। ठीक है, तो ये एक क्लासिकल कोलिजन टाइप सिचुएशन है और ट्रांसफॉर्मेशन भी है, क्योंकि ये पार्टिकल प्रोबेबली ट्रांसफॉर्म हो गया इनटू समथिंग एल्स। तो इस केस में और यही ये पॉइंट है जहाँ पे ये सब चीज़ें रेलिवेंट होती हैं। ये वाला टर्म इसी टाइप के प्रॉब्लम में रेलिवेंट हो जाता है, जहाँ पे कि आफ्टर द इवेंट द थिंग इज नॉट द सेम थिंग एज इट वाज बिफोर। सो जनरली व्हेन देयर इज अ, अभी हम लोगों ने उसमें पढ़ा है, मॉडर्न फिजिक्स हम लोगों ने पढ़ा है रिसेंटली। अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ोगे, जिन्होंने पढ़ लिया है। तो यू हैव सीन दैट इन न्यूक्लियर इवेंट्स, न्यूक्लियर डीकेज एंड ट्रांसफॉर्मेशंस, routinely it happens that the things on the right are different in mass. They are completely different entities. So the process produces a new entity or it causes something. Unlike classical collisions where it's pretty much the same thing before and after, they are just, the exchange is only of momenta and energy. But you can also have exchange of masses. You can have mass converting to energy and energy converting to mass. So probably that is what is happening here, if this is going to be different from this. And that's why this term will become important, right? So ठीक है, लिख लेते हैं इक्वेशंस हम। बेसिकली हमारा स्टोरी ये हो जाएगा इसका कि 4c/5 से आ रहा है, तो इसकी अगर मैं एनर्जी लिखूंगा, इसकी मैं एनर्जी और मोमेंटम लिख सकता हूँ डायरेक्टली। तो वो मेरे पास आ गई, इसका गामा निकाल लेते हैं। और फिर जो है फोटोन का मोमेंटम ही मेरे को पता है, फोटोन की एनर्जी पता है, और फोटोन का मोमेंटम मैंने बताया तुम यहाँ से निकाल सकते हो। फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है, तो फोटोन के लिए रिलेशनशिप E इक्वल्स टू PC होता है। तो E क्योंकि हमको दिया है तो उसका P भी निकल जाएगा, यानी इनिशियल मोमेंटम ऑफ फोटोन भी पता है और इसका मोमेंटम भी हम ऐसे लिख लेंगे। तो मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन लिखेंगे और y डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन से इस फोटोन के बारे में पता चल जाएगा, और x में इस इक्वेशन और प्लस एनर्जी इक्वेशन, राइट? सो दैट्स बेसिकली दैट इज ऑल आई हैव टू राइट। सो लेट मी जस्ट राइट इट आउट। पहले इसका निकाल लेते हैं कि m का एनर्जी कितना है। m का एनर्जी हो जाएगा गामा टाइम्स mc²। गामा कितना होगा इसका? 4/5 है ना, तो ये हो गया 1 माइनस 25 9 3/5 है ना, तो ये हो गया 5/3 mc², करेक्ट? गामा की वैल्यू फॉर 4c/5 इज 5/3, राइट? ये हो गया, और इसका जो मोमेंटम हो गया वो हो गया 5/3 m इंटू 4c/5, यानी कि 4/3 mc। और सिमिलरली ये फोटोन जो है, इंसिडेंट फोटोन जो है, उसका मैं E इक्वल्स टू पी सी, तो mc² इक्वल्स टू पी सी, देयरफॉर उसका P मेरे को मिल गया mc, तो उसका मोमेंटम भी मिल गया, उसकी एनर्जी भी मिल गई। तो मैं अपनी कंजर्वेशन लॉज लिख लेता हूँ। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इन x लिखते हैं पहले, तो x में लिखेंगे तो बेसिकली हमारे पास x में मोमेंटम सिर्फ ये लेके जा रहा होगा, मान लो ये v से जा रहा है बाद में,
ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, v इसका मोमेंटम निकाल लेते, मतलब इसका मोमेंटम निकाल लेते हैं हम, ठीक है, बाद में इसका फाइंड कर लेंगे कि क्या स्टोरी है। तो इसका बस मोमेंटम निकाल लेंगे हम। लेट्स कॉल दिस गाइस मोमेंटम p प्राइम, ठीक है, एंड लेट्स कॉल दिस फोटॉन्स एनर्जी e प्राइम। नहीं, सब प्राइम नहीं कर देंगे, E1 कह देते हैं इसको, ठीक है। तो p प्राइम मिल गया मेरे को, क्योंकि सारा मोमेंटम यही लेके जा रहा है। तो p प्राइम जो है वो हो गया 4/3 mc cos 30 फ्रॉम दिस गाय, एंड प्लस इसका मोमेंटम कितना था, mc ऑल्सो cos 30, राइट, mc इज द मोमेंटम ऑफ द फोटोन। तो ये बन गया हमारे पास 7/3 mc इंटू √3/2, तो 7/2 √3 mc बराबर। और y में मोमेंटम कंजर्वेशन लिखेंगे तो वो केवल ये फोटोन के पास होएगा, और इस फोटोन का मोमेंटम जो है E/c होएगा। तो E1/c इज इक्वल्स टू, ये वाला वर्टिकल मोमेंटम होगा ऊपर 4/3 mc sin 30 माइनस mc sin 30 बराबर। तो ये हो गया 1/3 mc हाफ, तो mc/6, करेक्ट, ठीक बात है। और अब एनर्जी कंजर्वेशन लिख लेते हैं, क्योंकि मेरे को इसका मास भी नहीं पता है ना एम प्राइम का। तो हाँ ये हो जाएगा कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लिख लो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वो क्या हो जाएगा, इधर इसकी एनर्जी है 5/3 mc² प्लस फोटोन की एनर्जी है mc², बाद में हमारे पास है इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी, तो E1 प्लस p'²/2m'। नहीं, वो नहीं लिख सकते ना, क्लासिकली नहीं लिख सकते हो तुम, ये यूज करना पड़ेगा। अच्छा हाँ हाँ सर सॉरी। वो इसलिए मैं उसको अभी नहीं लिख रहा हूँ, सॉल्व कर लेंगे फिर एक साथ लिख देंगे और स्क्वायर कर देंगे, इसलिए मैं उसको सिंबल की तरह, पहले मैं वही लिखने वाला था v करके, बट देन आई थॉट कि फिर पूरा लिखना पड़ेगा, कुछ बोल देते हैं उसको, em प्राइम बोल देते हैं, बाद में रिलेट कर देंगे उसको। तो E1 तो हमारा आ ही चुका है, E1 की वैल्यू कितनी आई है, mc²/6 है ना, तो हो गया 5/3 mc² प्लस mc² इक्वल्स टू mc²/6 प्लस em प्राइम, ठीक है। तो कितना हो गया है, 1/6 इधर आ गया, तो ये 5/6 हो गया और 5/3 है इधर, तो यानी 10/6 और 5/6 15/6। 15/6, तो 5/3 हो गया है वो भी, 5/2 mc² हो गया, ठीक है। हाँ तो मेरा कहानी आ गया यहाँ पे कि भाई em प्राइम मिल गया मेरे को, em प्राइम इज 5/2 mc², ठीक है। और p प्राइम भी उसका मिल चुका है मेरे को, मोमेंटम तो मिल ही चुका है उसका, pm प्राइम ही कर देते हैं जस्ट टू हैव कंसिस्टेंसी ऑफ सिंबल्स। pm प्राइम कितना था, 7/2 √3 mc, ठीक है, pm प्राइम था 7/2 √3 mc बस। तो अब ये दोनों आपस में वैसे ही रिलेट होने चाहिए, तो इससे हमें मिलेगा कि भाई em प्राइम मस्ट बी, स्क्वायर ही कर देते हैं, m प्राइम c² होल स्क्वायर प्लस pm प्राइम c होल स्क्वायर, करेक्ट, सही है। तो ये हो गया तुम्हारे पास 25/4 m² c4 इक्वल्स टू m प्राइम² c4 प्लस 49/12
m स्क्वायर c4 बराबर। तो c4 उड़ा दो तो मेरे पास आ गया m प्राइम स्क्वायर इक्वल्स टू 3 से मल्टीप्लाई कर दो 75/12 माइनस 49/12 m स्क्वायर। तो m प्राइम आ गया कितना हो गया 12 और 26 m स्क्वायर 26/12 राइट। सही किया मैंने। थर्टीन बाई सिक्स एम आ गया। ठीक है यही होगा आंसर। और अगर अब मुझसे कोई बोलेगा कि ये तो ठीक है इसका मास आ गया बट लेट्स से अब वो मुझसे पूछते हैं कि इसकी स्पीड कितनी है तो कैसे निकालेंगे। व्हाट इज द वे टू फाइंड द स्पीड ऑफ दिस एम प्राइम। सर पी डैश और एम डैश पता है ना। हाँ लेकिन गामा मत भूलना। हाँ सर। ठीक है हाँ सर। यू डोंट फॉरगेट गामा एंड समटाइम्स एक्चुअली इट्स मोर कन्वीनियंट बिकॉज दैट गामा के अंदर भी वी है। वैसे तो कोई बात नहीं है पी डैश पता है एम डैश पता है तो वी यहाँ लिख दो और वी का फंक्शन ये भी है फिर वी को सेपरेट करके स्क्वायर करके निकाल लो। बट अगर ई और पी पता है तो इसको डिवाइड करके फिर अच्छा ऑप्शन आ सकता है तुम्हारे पास लाइक पी बाई ई इज वी बाई सी। तो वी निकालने का ज़्यादा कन्वीनियंट तरीका ये होता है टू फाइंड v of m prime you can say v by c equals to pm prime by em prime right dividing these two equations। तो pm prime already पता है अपने को v/c²। सर हाँ सी v by स्क्वायर। c square हाँ सॉरी। तो pm prime जो है वो है 7/2√3 mc और em prime जो है वो है 5/2 mc स्क्वायर। ठीक है तो इससे तुम्हें आंसर मिल जाएगा इसका स्पीड के बारे में। सम नंबर टाइम c आ जाएगा कितना हो गया v हो जाएगा 2 उड़ा दो 7/5√3 c इतना फास्ट ही जा रहा होगा। ठीक है सो एसेंशियली वही करना है क्योंकि इवन द प्रिंसिपल्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इनफैक्ट द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम वो हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं वैसे। मतलब रोटेशन अंडर अंडर रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं बट द प्रिंसिपल्स आर द सेम। दीज लॉज आर बेसिकली ओवरआर्चिंग लॉज इन फिजिक्स and they hold in all domains. So the only thing is that the expressions for momentum, energy, and their relationships have been modified, but the way the whole thing works is pretty much the same. Is that you have to write momentum conservation in x, momentum conservation in y, conservation of energy. But be careful when you're doing relativistic mechanics. Never forget the fact that I mean हो जाता है कि तुम जल्दी से लिख दो half mv square है कुछ, but don't do that. Just always remember this one and you'll be all right. ठीक है क्लियर। हाँ सर ग्राफिक थोड़ा लो आ रहा है मतलब कैमरा थोड़ा एडजस्ट। तो मे बी इस वक्त नेटवर्क का इशू हो रहा है मेरे को। अच्छा वो भी हो सकता है ठीक। बट दिख रहा है ना मतलब एकदम। हाँ सर एकदम इनविजिबल है वैसा नहीं। हाँ ठीक है कोई चीज़ नहीं दिख रहा हो क्लियरली तो बोलना मैं बता दूंगा। ठीक है तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स तो में आ सकते हैं। ये उसका प्रोटोटिपिकल एग्जांपल है कि कैसे हम कोलिजन्स को हैंडल करें। डीके प्रॉब्लम हो सकता है। डीके प्रॉब्लम जो है बेसिकली कोलिजन प्रॉब्लम है इन रिवर्स। कोलिजन में दो चीज़ें टकराते हैं और एक चीज़ और दो चीज़ बनते हैं। अगर दो चीज़ टकरा के एक चीज़ बन रहे हैं तो वो भी कोलिजन है और उसको रिवर्स में चला दो कि एक चीज़ से दो चीज़ बन गए तो उसको डीके बोलते हैं। सो इट्स जस्ट द ऑर्डर I mean the direction of time but conservation laws are basically agnostic when it comes to the flow of time.
So it's the same equations you have to write whether it's a decay process or a collision process or whatever. ठीक है, तो ये तो एनर्जी और मोमेंटम का स्टोरी हो गया, इतना ही हमें जानना है इसमें। अब हम आ जाते हैं अपना लास्ट टॉपिक इन रिलेटिविटी विच इज फोर्स। बेसिकली न्यूटन सेकंड लॉ जो है वो कैसे करना होता है। तो सर आपने वो लिखा था ना, वो और एक बार एक्सप्लेन कर सकते हो? वो E इक्वल टू गामा E डैश प्लस V P डैश, वो E डैश E वो सब। हाँ, वो ट्रांसफॉर्मेशन है। जैसे लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन था स्पेस और टाइम, स्पेस इंटरवल और टाइम इंटरवल का बिटवीन टू फ्रेम्स, जिसमें प्राइम्ड फ्रेम था हमारे रिलेटिव मूव करते हुए और अनप्राइम्ड हम खुद है, हमारा फ्रेम है वो। अच्छा, ओके सर। ये जो है एनर्जी और मोमेंटम के एक्सप्रेशंस हैं। इफ यू आर ऑब्जर्विंग अ पार्टिकल देन दिस इज द एनर्जी यू सी फॉर दैट पार्टिकल इन योर फ्रेम, दिस इज द मोमेंटम you see in your frame. And if there is a frame moving at speed v relative to you, then when they observe that same particle, they find E prime and P prime as energies and momentums of that particle. So if you know the energy or and the momentum, you will need to know both of something in that frame, in a frame that is moving relative to you at v. V जो है, again keep in mind relativity में, transformations में, even in the Lorentz transformation and over here, the v is not the speed of the thing you are observing. उसका कुछ होगा जो उसके p प्राइम और e प्राइम में कैप्चर्ड होगा कि वो क्या है, फोटोन है, इलेक्ट्रॉन है, क्या कर रहा है। v जो है हमारा फ्रेम्स का रिलेटिव मोशन होता है। तो एक मूविंग फ्रेम है जिसमें एक कोई पार्टिकल को ऑब्जर्व किया जा रहा है जिसकी एनर्जी e प्राइम और p प्राइम है, और वो फ्रेम मेरे रिलेटिव v से जा रहा है। और अगेन ये जो ये फॉर्म ऑफ द इक्वेशन इस सेंस में है कि वो फ्रेम मेरे रिलेटिव पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है v से, ये मैं हूँ, क्योंकि हमने इसी के कन्वेंशन से डिराइव किया था। मैंने डिराइव नहीं किया था लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, बट अगर हम डिराइव करेंगे तो वो अज्यूम, अगर तुम उस फ्रेम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस फ्रेम को देखोगे तो ये उल्टा जा रहा होगा। देन यू हैव टू स्विच द साइन ऑन v, नो बिग डील, एंड यू हैव टू मूव द प्राइम्स टू दिस साइड, बट that is what it is. It works exactly like the Lorentz transformation कि उसके फ्रेम में, दूसरे मूविंग फ्रेम में मेजर्ड एनर्जी और मोमेंटम के टर्म्स में, और उस फ्रेम के मोशन के टर्म्स में v एंड गामा, I can find the energy and momentum of something. बट ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये टेक्निकली सिलेबस में नहीं है तुम्हारे, but it's related to energy and momentum and it's quite similar to the Lorentz transformation. I won't say you should remember it, it's not really worth it. You don't, if you are going to get a question, relativistic question in the IPHO from this particular topic, from energy and moment, if you get it from the previous kinematics and all, you might get questions from there जो हम पहले के कर चुके हैं। लेकिन अगर तुम्हें एनर्जी मोमेंटम में से आता है तो मे बी तो मोस्टली बहुत बेसिक प्रॉब्लम रहेगा। हो सकता है कि उसका स्टोरी हो एलैबोरेट सा कि पार्टिकल है, और मतलब ऑब्वियसली वो रहता ही है जनरली, दे माइट स्टार्ट विद सम काइंड ऑफ अ कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी कि भाई लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर में उसको हम अप टू द स्पीड ऑफ 99.99% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट लेकर गए हैं और ये वो। बट एसेंशियली इफ इट्स अ प्रॉब्लम फ्रॉम एनर्जी एंड मोमेंटम, इट विल फंडामेंटली बी अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम। ज़्यादा इन डेप्थ ट्रीटमेंट जो है इस टॉपिक का हमको नहीं करना है। तो उसमें जो है इम्पोर्टेंट जो पार्ट्स हैं वो यही हैं essentially. This is really the important part from this topic. Okay. This is really the key idea in terms of if you're going to get a problem to solve. ठीक है। तो या तुमको ऐसा कोलिजन, एक और प्रॉब्लम आ सकता है कोलिजन में जो स्कैटरिंग प्रॉब्लम आ सकती है कि फोटोन ने इलेक्ट्रॉन को, ये मैं बोल देता हूँ ऐसी होमवर्क की तरह, तुम लोग ट्राई कर लेना इसको। हो सकता है मैंने ये कराया होगा, if any of you is from 3-year बैच, तुम में से कोई नहीं है शायद 3-year बैच का ना, तो उसमें हम लोगों ने एक्चुअली ये कॉम्पटन स्कैटरिंग करके किया एक चीज़ डिस्कस। फ्लैगशिप में भी शायद हम लोगों ने किया था ये। बेसिकली इट्स ऑल्सो अ collision, relativistic collision, where there is a photon that is going to bombard an electron, basically hit an electron, which is assumed to be stationary initially. नहीं कैसे?
नहीं किया है, ठीक है, ट्राई कर लेना। सेम प्रिंसिपल्स हैं जो अभी मैंने किया, वही करना है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बट दिस वे, रिलेटिविस्टिक फार्मूला यूज करके। तो तुम्हारा फोटोन आ रहा है, लेट्स से कि इसका मोमेंटम पी नॉट है, ये दिया हुआ है, पी नॉट के टर्म्स में आंसर आएगा तुम्हारा। और इलेक्ट्रॉन रेस्ट पर है, उसका मास तुम ले लो me, स्टैंडर्ड सिंबल, और फिर फोटोन जो है स्कैटर करेगा, बेसिकली इट विल बी अ डिफरेंट फोटोन, बिकॉज सिंस इट विल बी गोइंग विद अ डिफरेंट मोमेंटम p prime, it will be a different photon, because something that we are not talking about here, which is that कि फोटोन का जो मोमेंटम होता है, मतलब हमने वैसे बाय द वे यहाँ से डिस्कस किया था कि एच सी बाय लैम्डा से उसका एनर्जी लिखते हैं और मास जीरो होता है, तो मोमेंटम एच बाय लैम्डा होता है। दैट्स रियली सॉर्ट ऑफ I mean, we are already partly into quantum mechanics there. फोटोन का मोमेंटम जो है एच बाय लैम्डा लिखते हैं, तो मतलब पी नॉट पता है तुम्हें, तो उसका वेवलेंथ पता है, और अगर उसका मोमेंटम चेंज हो गया है बाद में इलेक्ट्रॉन को ठोकने के बाद, तो उसका वेवलेंथ भी चेंज हो गया है, तो वेवलेंथ की आइडेंटिटी होता है फोटोन का, सो देन यू से इट्स अ डिफरेंट फोटोन, राइट? इट्स, इफ इट्स a photon of visible light, then this is some color, this is some different color. So this is a phenomenon called Compton scattering. This phenomenon, this experiment was iconic in the sense of it established the identity of the photon as a true particle, because this was the first time somebody applied conservation of linear momentum to a particle of light, which is quite a landmark event, because light, मतलब ठीक है, पार्टिकल लाइट को बोल दिया गया था काफी पहले, इस एक्सपेरिमेंट से करीब 20 साल पहले आइंस्टाइन ने, इन द एक्सप्लेनेशन फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बट to say that it is a particle is one thing, and to say that you can write conservation of linear momentum for it is a totally different thing. I mean, आइंस्टाइन के भी पेपर में 1905 का जो उसका पेपर है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे, and if any of you are interested in or have the time or the desire to do it, you can totally read that paper. तुम्हें उसका free PDF भी मिल जाएगा, and you will actually find that it is surprisingly easy to read and understand, given that he supposedly Einstein ने लिखा है, but the language is quite straightforward, and it's actually beautiful to read something like that, because you get a sort of a glimpse of how these pictures are created, which is very different from how we talk about these things normally, or if I'm telling you, like I'm teaching you, I'm trying to say it to you in the same spirit, but of course it's really difficult for me to do it because I'm not a professional physicist, so I'm still using a sort of a layman kind of language or a layman kind of understanding. But जिस तरीके से ये लोग सोचते हैं उन चीज़ों के बारे में is a very different way of saying, even saying those things. Like if you read that paper, बाद का जो पेपर है वो, so there's like two parts to it. It's like it's a short paper, and the first 2-3 sections are about the photoelectric effect, and then the next section is about something else, so you can skip that, leave that. But the first 2-3 sections are basically just an explanation of the photoelectric effect, and very simple language, but very elegant language. That what you see over there is that he's trying to explain, he's trying to for the first time say something like we now will have to treat light as if it's not a continuous flow of energy, but that it is arriving as packets, individual packets. And he's saying it in language which obviously वो translated भी है, उसने तो जर्मन में लिखा था, but even then he's saying it in language which is very a very physicist kind of language. So he's not really saying too many things. He's not trying to over specify the photon. It's not like कि अभी हमें पता तो कुछ है नहीं, right? It's a speculative idea कि अगर हम इसको particle के point of view से सोचें, light के arrival को onto the plate, instead of thinking of light as ripples in a pond, which is sort of washing onto the plate, and then with its energy loosening the electrons, as if वो कोई रिवर बैंक पे कोई प्लांट्स लगे हुए हैं जिनको वो थोड़ा एनर्जाइज कर करके फाइनली निकाल देगा, तो वो मेंटल पिक्चर हटा के और एक दूसरा मेंटल पिक्चर लाना है जहाँ पे वेव्स की तरह नहीं आ रहा है, एक बॉम्बार्डमेंट ऑफ
particles हो रहा है, like the light is coming as a rain of particles, and then the interaction between light and an electron is instead of like a smooth continuous thing which sort of loosens the electron from its place and brings it out, is sort of an instantaneous effect where the photon strikes the electron and then it sort of frees the electron. तो अब ये उसको बोलना है, और काफी नया आइडिया है ऑब्वियसली, बिकॉज उस टाइम पे nobody is ready to think of light in those terms. But the way he says it is not is basically without over specifying the photon. He doesn't spend too much time explaining what the photon is, and the reason for that is he himself doesn't know, nobody knows, right? तो वो वहां से स्टार्ट करता है बोलना कि जितना जरूरी है अभी एक्सप्लेन करने के लिए उतना ही वो बोलता है. He just simply says that a small packet of energy arrives. Whether that packet of energy looks like a sphere, whether it's a spinning sphere, whether it has some other properties. So when we think of a particle like an electron or a proton, we have some mental image in our head, right? We think of probably like a tiny sphere which has this and that and so on. And their relative sizes in our head also, कि proton बड़ा sphere होता होगा, electron छोटा sphere होता होगा, उसपे charge भी होता है, वो spin भी कर रहा होता है. तो ये बहुत सारे features हैं उसके. कोई सा भी फीचर हम देख तो सकते नहीं आंखों से, लेकिन एक्सपेरिमेंटली डिड्यूस्ड है. अब फोटोन जो है नया पार्टिकल पोस्टुलेट किया जा रहा है, किसी को पता भी नहीं है कि वो है या नहीं है. तो आइंस्टाइन बेसिकली जस्ट सेज it's a small chunk of energy that arrives, and that's it. He ends the story there. He doesn't go into too much detail trying to be laborious about फोटोन में ये होता है, फोटोन ऐसा दिखता है, फोटोन ये करता है, बिकॉज वो सब वो बोल नहीं सकता है. He has no standing to over describe the photon. So what happened was कि 1905 में उसने फोटोन पोस्टुलेट कर दिया, और उससे फिर फोटोइलेक्ट्रिक को एक्सप्लेन भी कर दिया इन वेरी मिनिमलिस्टिक टर्म्स. बट उसके बाकी फीचर्स या उसकी ट्रू आइडेंटिटी जो है एस्टैब्लिश वैसे हुई जैसे जैसे रिक्वायरमेंट हुई. आइंस्टाइन को सिर्फ इतनी रिक्वायरमेंट थी उधर में कि एनर्जी कंटिन्यूअसली नहीं आए, एनर्जी चंक्स में आए. तो चंक ऑफ एनर्जी से आइंस्टाइन का काम चल गया, और फोटोन का पार्टिकल नेचर बस उतना ही डिस्क्राइब होके रह गया वहां पर. तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन मोर एक्सपेरिमेंट्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स वर डन व्हिच illuminated or sort of revealed different aspects of the photon, that is how the photon got more of its identity in our minds. It acquired more features. So it was like initially nothing, a vague form, just a bunch of energy, and then slowly. So this experiment, which is probably in like exactly याद नहीं, but mid 1920s में था, is the first time somebody writes the equation of conservation of linear momentum for the photon. So I mean, starting from just saying that it is a small chunk of energy which arrives, to actually being able to write the conservation of linear momentum equation and then produce from it the experimental result. ये जो है उस सेंस में काफी लैंडमार्क एक्सपेरिमेंट था. इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा विद सम पी मोमेंटम, और ओरिजिनल लाइन ऑफ अटैक से फोटोन जो है थीटा पे जाएगा. ठीक है, तो तुम्हें ये प्रूव करना है, तुम लोग ट्राई कर लेना इसको. यही इसका रिजल्ट भी है, यही एक्सपेरिमेंटली मेजर किया कॉम्पटन ने. प्रूव दैट लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा नॉट is h by MEC 1 minus cos theta. This will require you to write conservation of energy, conservation of momentum. And what Compton did was basically set up this experiment, and ये इसने ऐसे किया था, एक ग्राफाइट का शीट लिया था और उसको फिर एक्सरे फोटॉन्स से बॉम्बार्ड किया था, और सामने जो है एक फॉस्फोरेसेंट स्क्रीन था सर्कुलर, जिसपे सामने में 0 डिग्री था. ठीक है, and then there were other places. And so this particular photon after the event goes at theta and strikes here and has a wavelength lambda prime. The X-ray photon has a wavelength lambda prime. The electron is inside the graphite. It's supposed to be a free electron, so, and not very energetic. So the photon is basically scattered of the electron within the graphite film. And then he measured what the wavelengths that he found over here and empirically found this relationship. And then he theoretically showed it by writing similar equations, by writing the conservation of linear momentum equation for the photon. ठीक है, तो anyway, this is also an example of
a relativistic collision event. You can try this out as homework. अब finally जो है, coming back to this thing, which is how do you write F equals to ma? सर उसमें आपने कैसा बताया, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जा रहा है, वो भी थीटा पे जा रहा है क्या? नहीं, वो ले लो, वो एलिमिनेट करना रहेगा तुम्हें, वो रेलेवेंट नहीं रहेगा. अच्छा ओके. तुम्हारा फाइनल आंसर में बस ये आएंगे. ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा, बाकी इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है और कितना फास्ट जा रहा है वो सब तुम्हें एलिमिनेट करना रहेगा. पी मैंने लिख दिया है, वो भी जाने दो. तो इन चीजों में रिलेशनशिप फाइंड करनी है कि फोटोन कितना एंगल पे स्कैटर हुआ तो उसका क्या वेवलेंथ हो गया, बिकॉज व्हाट ही फाउंड वाज अ स्प्रेड ऑफ वेवलेंथ एज अ फंक्शन ऑफ एंगल. ठीक है, यस. ऑलराइट. सो नाउ फोर्स. अब ऑब्वियसली फोर्स जो है ma तो नहीं होगा, एज यू कैन वेरी वेल एक्सपेक्ट. ठीक है, तो कैसे उसको लिखा जाए? तो व्हाट इज स्टिल ट्रू is that Newton's second law is still true, and Newton's second law is correctly F equals to dp by dt, right? F equals to ma is a special case of it when the mass is not changing. Then and you take the classical momentum mv and then you expand it, and then you find that if the mass is not changing, then you get what is ma. But of course over here गामा एम ही आ जाएगा. बस यही बात है कि गामा एम भी हो जाएगा. तो अब ये तीनों प्रॉपर्टीज चेंज हो रही हैं, हो सकती हैं पोटेंशियली. v तो चेंज हो रहा है, तो गामा तो v के साथ ही चेंज हो रहा है, और m भी चेंज हो सकता है. अज्यूमिंग अभी फिलहाल के लिए हम लोग नहीं कर रहे हैं, वैसे वेरिएबल मास तो नहीं कर रहे हैं, वैसे हो सकता है, वो भी एक सिचुएशन होती है. इनफैक्ट दैट्स लाइक अ प्रॉपर sort of problem area in itself, but that is also not relevant for us, is variable mass problems in SR, where you have like a rocket वही सेम चीज जो हम उस टाइम पढ़ते थे क्लासिकल मैकेनिक्स में, rocket propulsion या whatever, but except relativistically. So we are not going to do that. So I'll assume that तो मेरे पास जो है, अब स्केलर फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं इसको, तो मेरे पास आ जाएगा गामा m dv by dt प्लस mb d गामा by dt. ठीक है, अब तुम लोग इसको डिफरेंशिएट करके देख सकते हो कि गामा से क्या बनेगा एंड ऑल, राइट? गामा का डिफरेंशिएशन कर सकते हो प्रोडक्ट जो भी तुम्हारा चेन रूल होता है उससे लगा के. तो फाइनली जो तुम्हें f इक्वल्स टू ma का एक वर्जन मिल जाएगा. जो कि बेसिकली आ जाएगा, I mean you can do this, right? You can just sort of differentiate gamma and get the result. हाँ. ठीक है, तो बस यही चीज है इसमें कि ये करेक्ट है, स्टिल करेक्ट. The only difference is momentum has to be written as gamma mv. ठीक है, तो इस पे एक क्विक क्वेश्चन कर लेते हैं. Let's say particle at rest starts moving. पार्टिकल है एक, उसका रेस्ट मास जो है वो m नॉट है. ठीक है, रेस्ट मास तो क्या मतलब, मास है उसका, अब हम रेस्ट मास तो नहीं बोलते हैं, मास है उसका m नॉट. ठीक है, m ही ले लो, m उसका मास है, और इस पे F फोर्स लगता है, वो कांस्टेंट है. ठीक है, तो F इज अ सिंबल व्हिच इज अ कांस्टेंट फॉर दिस प्रॉब्लम, एंड starts moving at t equal to 0.
find the speed of particle at time t. करो इसको. Straightforward question है, directly based on
हेलो सर। हाँ बोलो। सो हम ये क्या है, गामा, आर इज गामा, यस सर। बट एफ क्यों नहीं है इसमें? सर इसमें न्यूटोनियन नहीं होगा क्या सर? इसमें मतलब क्या डिफरेंट होगा? रिलेटिविटी लेने लायक कुछ है नहीं यहाँ पे। एफ एक कांस्टेंट है, एम है, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, फिर v इक्वल टू 80 कर देंगे। और कुछ तो है नहीं इसमें रिलेटिविटी के लिए। नहीं, तो जब तुम इसकी स्पीड निकालने के लिए जाओगे एफ फोर्स के चलते, तो ये यूज करोगे ना। सर उससे तो मेरे को कुछ v इक्वल टू गामा v ऐसे रिलेशन आ रहा है। डीवी बाई डी टी अगर तुम निकाल लोगे तो वी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा, राइट? हाँ सर। लेकिन उसमें ये भी निकालना पड़ेगा। सर बट हम इसमें मतलब f हमें कांस्टेंट दिया हुआ है ना। हाँ, एफ कांस्टेंट है। तो सर हम लोग मतलब गामा एम वी p इक्वल टू गामा एम वी वाला चीज क्यों मानेंगे? ये क्यों मानेंगे? हाँ सर, मतलब गामा आ क्यों रहा है? क्योंकि नॉर्मल एक मास है और उसको हम लोग फोर्स से नहीं, पुल कर रहे गामा हैं। इसलिए नहीं, उससे एफ के कांस्टेंट होने से क्या फर्क पड़ता है? एफ कांस्टेंट है इज अ सेपरेट इशू, दैट्स एन एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। द बॉडीज मोमेंटम इज नाउ रिटन एज गामा एम बी। सर क्यों? क्योंकि ये करेक्ट है, यही करेक्ट है, ट्रूली करेक्ट यही मोमेंटम है। क्लासिकल मोमेंटम तो इसका अप्रोक्सीमेशन है फॉर लो स्पीड्स, अच्छा हाँ सर ठीक है। राइट? Now I'm getting a cubic. क्यूबिक मतलब गामा में? No, sir, in V. Hmm, नहीं, आई थिंक नॉट। Okay, so let me substitute gamma then. Maybe I'll get a हाँ, simpler. उतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इनफैक्ट अगर तुम लोग ये प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले एक बार वंस एंड फॉर ऑल इसको कर लो, सो दैट कि पूरा चीज में देखो, ये तो ए ही है, मतलब ये थोड़ी ए नहीं है। ए का मीनिंग तो वही है, ए का तो डेफिनेशन ही है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, राइट? तो dv बाई डी टी अगर तुम्हारे पास आ जाएगा तो फिर तो तुम जो भी v वाला पार्ट है वो dv के नीचे डाल के इंटीग्रेट कर दोगे, टाइम उधर ले लोगे f के साथ। ये चीज को एक बार वंस एंड फॉर ऑल सॉर्ट कर लो, यानी बेसिकली इस इक्वेशन को एक बार समथिंग टाइम्स ma की फॉर्म में लिख लो। इफ यू कैन राइट इट एज समथिंग ma तो हो जाएगा, क्योंकि वो dv बाई डी टी है। बस ये चीज कर लो, फिर उसके बाद v को एक तरफ करके और इंटीग्रेट, तो v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया।
सर जो निकालना है वो कैंसिल हो रहा है। ऐसे कैसे? सर पूरा एक्सपैंड करके डिफरेंशिएट किया हम्म सर, तो c बाय कुछ तो मतलब f बाय m इक्वल टू समथिंग इंटू dv बाय dt प्लस समथिंग इंटू dv बाय dt आया हम्म सर। तो a भी तो dv बाय dt है ना, वो f बाय m भी तो dv बाय dt है। नहीं, एफ बाई एम डी बाई डी टी नहीं है। ए डी वी बाई डी टी है, लेकिन अब ए एफ बाई एम थोड़ी है नेसेसरली। अच्छा हाँ सर, ठीक है सर। तो उसको f बाय m के फॉर्म में ही लिख के रखना है। हाँ, हाँ सर ठीक है, 1 मिनट। सर वो इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा जो चीज आया। नहीं ऐसा तो नहीं। सर बहुत रैंडम चीज आ रहा है, मतलब c क्यूब माइनस वी स्क्वायर c प्लस सी वी बाय सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर पावर 3/2 डॉट डी सर हाँ, ऐसा। ऐसा कुछ आना चाहिए, लेकिन वो सिंप्लीफाई हो जाएगा। हमारे पास क्या था कि एफ जो है उसको हमने लिखा गामा एम टी वी बाई डी टी प्लस एम बी डी गामा बाई डी टी। ठीक है, तो अब इधर में पहले डी गामा बाई डी टी क्या हो जाएगा? डी गामा बाई डी टी हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ 1/1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये हो जाएगा 1 माइनस की पावर 3/2 और माइनस हाफ ऊपर आ गया, और फिर इसका डेरिवेटिव हो जाएगा -2v/c² और फिर dv बाई dt, है ना। ये बेसिकली बन गया v। सर मैंने जो मैसेज किया उसको इग्नोर कर दीजिएगा। ठीक है, v/c², और ये तो गामा क्यू भी लिखा है ना, dv बाई dt बराबर। ठीक है, ये इधर आएगा, तो देयरफॉर तुम्हारा f हो गया, m तो कॉमन ले ही लो, dv बाई dt भी कॉमन ले लो, तो इधर है गामा और इधर है एक सेकेंड, मैंने क्या कॉमन ले लिया, m कॉमन ले लिया और इधर का dv बाई dt कॉमन ले लिया, तो मेरे पास बचा v²/c² गामा क्यूब, है ना।
सही लिखा है नहीं? हाँ, हाँ सर सही है। गामा m dv by dt 1 plus v square by c square over 1 minus v square by c square, सही है, गामा स्क्वायर है तो ये हो जाएगा, गामा ही बन जाएगा ये तो, गामा स्क्वायर m dv by dt बन गया ना कि नहीं? गामा क्यूब बन गया ना टोटल, क्योंकि ये गामा स्क्वायर बन जाएगा 1 माइनस हाँ v। सर वो गामा को अलग करके डील नहीं कर रहा था। हाँ, तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि रिलेटिविस्टिकली न्यूटन सेकंड लॉ को तुम ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अब हमारा पार्टिकल पे फोर्स लगना चालू हो गया, F, बस तो यही इक्वेशन है और कुछ नहीं है, F इक्वल्स टू गामा क्यूब m dv by dt, तो F बाय m dt मास कांस्टेंट है, और ये हो जाएगा dv बाय 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर क्यूब, सॉरी 3/2 का इंटीग्रल, तो 0 से v 0 से t, तो एफ टी बाई एम और इसका इंटीग्रल जो भी हो जाएगा, क्या करें इसको ऐसे कर लेते हैं, सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, लेट v बी c साइन थीटा, ठीक है, तो dv हो गया c cos थीटा d थीटा बराबर, तो ये वाला जो इंटीग्रल है इधर तो मेरे पास आ गया एफ टी बाई एम और इधर आ गया dv हो गया c cos थीटा d थीटा और नीचे आ गया 1 माइनस c कट गया साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा रूट, एक सेकेंड, cos स्क्वायर थीटा cos क्यूब थीटा हो गया, ठीक है, तो ये तो सेक्स स्क्वायर थीटा हो गया, सी भी ले लो इधर, सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा का इंटीग्रल तो tan थीटा ही होता है, tan थीटा का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर थीटा होता है, और tan थीटा है तो अब जो है साइन थीटा v बाई सी था, तो tan थीटा कितना हो गया v ओवर अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, जिसमें लिमिट डालनी है 0 और v, है ना, वापस रिसब्स्टिट्यूट कर दिया मैंने उसको, तो v डालेंगे तो यही और 0 डालेंगे तो 0, तो यही बन गया v बाय अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, ये है एफ टी बाई एम, स्क्वायर कर दो इसको बराबर, सर क्या सर ये वाला स्टेप? कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैंने? नहीं सर करेक्ट है सॉरी। v के लिए सॉल्व करें ना, सही है v सर सही। उल्टा कर दो, तो सी स्क्वायर बाई वी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू एम स्क्वायर बाई एफ स्क्वायर टी स्क्वायर, बस तो हो गया, +1 कर दो इसको, रूट कर लो, तो v आ जाएगा एफ टी सी बाय एम स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर टी स्क्वायर, है ना, हाँ सर। हाँ ठीक है, ये करेक्ट होगा, ये है बेसिकली हाउ यू वुड राइट इट, एंड a is of course dv by dt बिकॉज वो तो डेफिनेशन है, उसका किसी रिलेटिविटी से कोई लेन देन नहीं है, इट्स द मीनिंग ऑफ एक्सेलरेशन, लेकिन f बाई m a नहीं है नेसेसरली, ठीक है, ऑलराइट, Sir, can you show the page properly? दिस वन, Our page. प्रीवियस पेज, Sir, यही page वो last. हाँ, दिस पार्ट,
सर इसका मतलब जो काइनेमेटिक्स की भी सारी इक्वेशन है वो सब भी अप्रोक्सीमेटली ही ट्रू है। काइनेमैटिक्स की मीनिंग टू से सर क्योंकि ये भी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन ही था ना। ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है। सर यूनिफॉर्म फोर्स आपने कांस्टेंट फोर्स बोला था ना आपने। हाँ, फोर्स कांस्टेंट है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इसका वेलोसिटी देखो ना, लीनियर इन टाइम का है वेलोसिटी। हाँ सर वही मतलब बोल रहा था कि इसका मतलब वो सब भी अप्रोक्सीमेटली ही ट्रू है। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स। ओके सर। बात ये है कि अगर तुम बोल रहे हो काइनेमैटिक्स की इक्वेशन बोल रहे हो तुम, राइट, सिर्फ ओनली द रिलेशनशिप्स बिटवीन एक्सेलरेशंस, वेलोसिटीज एंड पोजीशंस, राइट, यस सर। देन दैट पार्ट इज स्टिल करेक्ट, बिकॉज अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वेलोसिटी लीनियर इन टाइम तब भी आ जाएगा। लेकिन अब जो चेंज हो गया है वो ये चेंज हो गया है कि फोर्स कांस्टेंट होने से एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं आएगा। दैट रिलेशनशिप इज ब्रोकन नाउ। ओके सर। A constant force doesn't mean a constant acceleration. But a constant acceleration, if you could produce a constant acceleration, you would still get a velocity that is linear. That relationship between A and B is still correct. Kinematic जो relationship है तुम्हारा वो still true है, क्योंकि वो तो simply इस definition का integral है, right? यस सर। तो उसमें कोई पंगा नहीं है, लेकिन कांस्टेंट फोर्स से कांस्टेंट एक्सेलरेशन अब प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। ठीक है, ओके। ठीक है, ऑलराइट। आज हम इतना ही करते हैं। ये बेसिकली एंड ऑफ द स्टोरी हो गया रिलेटिविटी का। एक प्रॉब्लम मैं सोच रहा था और करते, बट तुम लोगों ने अभी मैग्नेटिज्म पढ़ लिया है कुछ? आई मीन, डू यू नो द हाउ टू राइट द मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल? हाँ No. नहीं, ठीक है, ठीक है। तो जब हो जाएगा, मे बी तुम लोग अभी शायद पढ़ ही रहोगे, मैग्नेटिज्म स्टार्ट हो रहा होगा, तो जब हो जाएगा तो तब उसको हम कर सकते हैं। मैं तुम लोगों को ग्रुप पे बता दूंगा कौन सा प्रॉब्लम है, तो तुम लोग उसको अटेम्प्ट कर लेना। उसमें थोड़ा पार्ट मैग्नेटिज्म का है, थोड़ा पार्ट रिलेटिविटी का है। इट्स फ्रॉम सम ओलंपियाड ओनली, वर्ल्ड ओलंपियाड, सो यू गेट सम like a realistic example of how relativity can come, and it's a very elementary kind of problem, मतलब बहुत basic concept उसमें है। Just if you're familiar with the idea that a relativistic quantities like momentum and energy are slightly different looking, then even then you could have done that problem without actually having the entire background. But anyway, सर ऐसा कुछ और टॉपिक है जो मतलब ओलंपियाड स्पेसिफिक है या सब हाँ, कवर हो गया? कवर तो हो गया मोस्टली। यही एक टॉपिक था मेजर जो बचा हुआ था, जो कि हम जेई में पढ़ते नहीं बिल्कुल भी। क्वांटम मैकेनिक्स बेसिक कुछ है, काफ़ी सारा हम लोग जो है जेई मतलब उसमें से कुछ पार्ट्स हैं जो जेई रिलेटेड ही हैं, तो हम जेई में पढ़ लेते हैं उसको, कि पार्टिकल की डे ब्रॉय वेवलेंथ है या एनर्जी लेवल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो सब चीज़ें। कुछ चीज़ें उसमें ऐसी हैं जो हम नहीं पढ़ते हैं, तो आई एम थिंकिंग कि नेक्स्ट टाइम से हम 2-3 लेक्चर में वो वाले पार्ट्स कवर कर लेंगे जो क्वांटम मैकेनिक्स इज नॉट इन द जेई। सो फिर हमारा बेसिकली सारा कहानी खत्म हो जाएगा। Specific to the international Olympiad we would be done. I mean, I don't think there is anything else. सर ये सब आईएनपीएचओ में आता है ना? नहीं नहीं, सर, ये सब एकदम जो फर्स्ट राउंड होता है उसमें भी ये सब आता है क्या? नहीं नहीं, ये उसमें नहीं आएगा। अच्छा, उस जो रिटर्न होता है उसमें आता है। फर्स्ट राउंड तुम्हारा जो फर्स्ट और सेकंड राउंड है, जो कि अभी कंबाइंड ही था इस साल, तो प्रॉब्ली अभी कंबाइंड ही आएगा वो, सर कंबाइंड मतलब एक ही दिन में हो। फर्स्ट का क्वालिफाई नहीं किया तो सेकंड पेपर चेक नहीं करेंगे वो लोग, हाँ, वैसा ही वैसा है? वैसा। तो हाँ ये जो 2 लेवल्स हैं ये केवल जेई एडवांस लेवल्स हैं। ये इंडियन ओलंपियाड ही है, नेशनल टीम सेलेक्ट करने के लिए होता है। ये पहला वाला तो मेंस लेवल टाइप ही है, और दोनों ही मान लो जेई एडवांस्ड लेवल जो होता है उससे थोड़ा, मतलब दिस इज लाइक समवेयर एडवांस लेवल, दिस इज स्लाइटली मेंस से थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल, बट दीज आर ऑल प्रॉब्लम्स दैट यू कैन, आई मीन, विद द जेई लेवल ऑफ प्रिपरेशन। ये जब हो जाता है और तुम दोनों क्वालिफाई कर लेते हो, तो फिर जो है तुम कैंप जाते हो, और कैंप में तुम जो है एक तो प्रैक्टिकल्स यानी एक्सपेरिमेंटल जो पार्ट है वो तुमको वो कराते हैं,
क्योंकि IPHO में एक्सपेरिमेंटल पार्ट पे भी क्वेश्चंस होते हैं, और प्लस ये सब टॉपिक्स भी वो कराते हैं. सो रिलेटिविटी दे प्रॉपरली, आई मीन टेक्निकली यू आर सपोज टू स्टडी दिस देयर, रिलेटिविटी, सम क्वांटम मैकेनिक्स and a few other advanced topics. You are supposed to basically give these with your, I mean देखो जो ideal world में you are supposed to give these with your class 12 prep, and then you go to the camp. If you qualify these two, you go to the camp, and over there they will then teach you the topics which you don't learn at class 12 level but which you need for the IPHO. अब हम लोग क्योंकि कर रहे हैं, हमारे पास टाइम है and we are able to do it, so we are already doing this stuff here so that you can do it slowly instead of in camp where it goes a bit faster. And तो इसलिए हमने कर लिया. अब तुम वहाँ पे भी अगर जाओगे तो वहाँ पे भी करोगे तो it's like you already have a background, so it's like easy for you. This is the only part you will have to really focus on. और फिर यहाँ पे भी एक sort of ranking होती है कैंप में भी, एंड तुम्हारा एक्सपेरिमेंटल कैसा रहा, तुम्हारा बाकी सब कैसा रहा, उसके बेसिस पे देन दे सेलेक्ट द 5 पीपल हु विल गो टू द IPH. तो ये जो टॉपिक्स हैं केवल IPHO में आते हैं, रिलेटिविटी या कोई थोड़ा एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स. बाकी ये जो पहले 2 लेवल्स हैं ये तो सिंपली यही लेवल है. एंड आई वुड से most of the problems in this are even lower than, I mean, not even as tough as the advanced level. Some problems are, but the overall level of this paper is slightly below advanced level. सर वो सेकंड वाला पेपर टफ होता है ना, वो सब्जेक्टिव वाला. हाँ थोड़ा सा, बट टफ कुछ नहीं है, तुम देखो उसको एक बार, वो कोई टफ नहीं है. वो जेई के भी जो टफ पेपर्स होते हैं उनसे इजियर ही होता है वो. जब राउंड 1 and 2 कंबाइन नहीं होता था तब लेवल 2 वाज हार्डर. हाँ ये तो है कि अब इन्होंने कंबाइन किया है तो थोड़ा सा लेवल 2 को इन्होंने और इजी कर दिया है, बिकॉज एक ही दिन में तुम्हें देना है. सो इस साल अभी जो कंबाइंड वाला पेपर हुआ था उसमें लेवल 2 वाज इवन इजियर देन इट यूज्ड टू बी अदरवाइज. But even in the normal years also, this is not a tough paper. So if you go back, you can check out. एक वो बुक ले लो तुम लोग, वो पास्ट पेपर्स है ना, वो होमी बाबा वाला आता है, PDF भी मिल जाएगा आई एम श्योर उसका इंटरनेट. तो उसमें तुम देख सकते हो पीछे के सारे पेपर्स, एंड यू कैन ऑल्सो प्रैक्टिस दीज प्रॉब्लम्स फॉर योर एडवांस्ड ऑल्सो. तो तुम देखोगे कि बिल्कुल सिमिलर लेवल है जो टाइप के प्रॉब्लम्स हम लोग क्लास में करते हैं, नॉर्मल जेई क्लास में करते हैं, तुम्हारे MT में आते हैं, उस टाइप के या उससे ईजियर प्रॉब्लम्स, या जनरली उतने कैलकुलेशन इंटेंसिव भी नहीं रहेंगे या उतने ज़्यादा मैथमेटिकली ट्रिकी भी नहीं रहेंगे. आई मीन कॉन्सेप्ट क्लियर है तो तुम कर सकते हो. सो अगर तुम्हारा ठीक से जेई का प्रेप हो गया तो दीज 2 लेवल्स शुडंट बी रियली डिफिकल्ट फॉर यू. ठीक है, तो ये सब जो हम पढ़ रहे हैं ये सब तो हम इसके लिए पढ़ रहे हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि टाइम है, कर सकते हैं तो ईजी हो जाएगा और बैकग्राउंड हो जाएगा तुम्हारे लिए. बाकी भी जो हम पहले पढ़ रहे थे इन द सेंस ऑफ जब हम बीच में प्रॉब्लम सॉल्विंग के सेशंस कर रहे थे तो हम IPHO के ही प्रॉब्लम्स कर रहे थे, वो लॉन्ग माइंडेड जो प्रॉब्लम्स थे. इवन जो मैंने तुम्हें और चीज़ें पढ़ाई हैं एक्स्ट्रा, जैसे वो डिफरेंशियल इक्वेशंस का पूरा एक डिस्कशन हुआ था, या इसमें हमने जब बोल्ट्जमैन फैक्टर और वो जो सॉर्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स पढ़ा था, थर्मोडायनेमिक्स का वो वाला पार्ट पढ़ा था, वो सब भी जेई लेवल नहीं है, वो सब भी IPHO लेवल ही है. नॉट दैट कि उस पर प्रॉब्लम्स आते हैं, इट्स नॉट अ sort of a specified part, although बोल्ट्जमैन वाला थ्योरी जो हमने पढ़ा था वो थोड़ा बहुत है, लेकिन वो सब चीजें मैं यही इसी को व्यू में रख के ही कर रहा था, बिकॉज आई फील लाइक दिस इज नॉट intense enough to merit a separate track of preparation. So I'm using this track, this Olympiad thing, to mainly do this one. नहीं मेधांश वो नहीं करना है, जनरल L वाला मत पढ़ना. हाँ नहीं वो नहीं करना है. लाग्रांजियन तुम्हारा फॉर्मलिज्म तुम्हारे सिलेबस में नहीं है और ओलंपियाड के लेवल पे भी नहीं है. ठीक है, तो डोंट डू दैट. मोरिन में अगर तुम लोग मोरिन में से पढ़ रहे हो तो मोरिन में रोटेशन के 2 चैप्टर्स हैं, एक 2D एंगुलर मोमेंटम वाला है और उसके बाद एक 3D प्रॉपर एंगुलर मोमेंटम वाला है. तो ये नहीं करना है, डोंट डू दिस. ठीक है. हाँ तो वो गलत था वो क्वेश्चन, दे गेव द रॉन्ग आंसर फॉर इट बिकॉज देयर ओन सोल्यूशन वाज इनकरेक्ट फॉर इट. वो दे दिया था उन्होंने और उन्होंने खुद गलत सॉल्व कर दिया था उसको, और फिर दे हैड टू बेसिकली. तो 3D जेई में तो है ही नहीं 3D रोटेशन, जेई में तो 2D रोटेशन है बेसिकली. रोटेशन का प्रॉब्लम तुम्हें इवन ओलंपियाड में भी नहीं है 3D रोटेशन प्रॉपर. ओलंपियाड किसी दोनों में ही
रोटेशन का प्रॉब्लम तुम्हें वही आ सकता है जो पेपर पे बनाया जा सकता है. मतलब अ प्रॉब्लम दैट कैन, जिसका डायग्राम, नॉट अ ड्राइंग तो ऑब्वियसली मैं 3D में भी बना सकता हूँ, लेकिन जिसका डायग्राम विच कैप्चर्स ऑल द इंफॉर्मेशन कैन ओनली बी ड्रॉन ऑन अ पीस ऑफ पेपर. दैट इज ओनली द काइंड ऑफ रोटेशन यू हैव इन योर सिलेबस. अ प्रॉब्लम विच रिक्वायर्स अ पर्सपेक्टिव ड्राइंग टू बी मेड, कि कौन आ रहा है, इंक्लाइन प्लेन पे कौन रोल कर रहा है, तो इसको बनाने के लिए ऐसे बनाना ही पड़ेगा, right? There is no way to draw a cross section of this, right? So it's a proper 3D problem because it goes in a complicated manner. It's angular momentum, vector, time के साथ change होता रहेगा. मेदांश, फिक्टिशियस फोर्सेस वाला चैप्टर तुम पढ़ सकते हो, इंटरेस्टिंग है, लेकिन उसमें जो उसका जनरल डेरिवेशन है, इफ यू आर एबल टू फॉलो इट, गुड, इट्स अ वेरी एनलाइटनिंग सेक्शन, बट इफ नॉट देन इट्स फाइन टू स्किप ओवर इट बिकॉज उतना इंपॉर्टेंट नहीं है. अगर तुम ये समझ जाओ कि कोरियोलिस, what you can do is you can skip the derivation and go to the solved examples. उस चैप्टर में जो solved examples है ना, वो जो स्पेशली वो जो मेरी गो राउंड के थ्रू उसने एक्सप्लेन किया है सारे फिक्टिशियस फोर्सेस को वन आफ्टर द अदर. So if you can just read those parts and see how each force comes into play, then you are set. You don't need to see the general vectorial derivation of how the pseudo forces arise. हम लोगों ने वैसे शुरू में पढ़ा था ये, मुझे याद है कि शुरू का ही पहले दूसरे लेक्चर में हमने कोरियोलिस फोर्स और ये सब का डिस्कशन किया था. बट if you don't want to rewatch the entire lecture, then you can just simply read मोरिन का ये सब पार्ट्स जो एग्जांपल्स हैं. चाहो तो अगर मोटिवेशन है, टाइम है, तो वो डेरिवेशन देख सकते हो क्योंकि वो अच्छा डेरिवेशन है, लाइक इट रियली मेक्स यू सी द होल थिंग. बट if you don't want to, you can skip it totally. Just understand, just like you have an intuitive feeling for how when something is rotating you will have a tendency to get thrown off, like you have an intuitive feeling for this pseudo force. Just develop an intuitive feeling for what if on a rotating merry-go-round a guy is walking and then he feels a Coriolis which is to the side. So by looking at the vector expression you can understand how it operates, right? तो it tricky नहीं. मैं actually what I will do is theory के point of view से मैं दे रहा था तुम लोगों को theory के sections पढ़ने के लिए, but कुछ time से दिया नहीं. I will just go through Morin Bunce and Kleppner and just write down all the sections that you that are relevant for you guys. So whenever you have the time you can read that theory. So that will be like theory homework for you once and for all. तो तुम लोग उसको पढ़ लो. इसमें भी तुम्हें उसमें जेई के लिए भी फायदा होगा उन सब चीज़ों से, बिकॉज कॉन्सेप्चुअली और स्ट्रांग हो जाओगे. सो एक दिन में बैठ के मे बी इन द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज आई विल जस्ट सी विच ऑल सेक्शंस you can read, which all to skip, right, and just send it on the group. सर ये तो फिर सपोज वो ओलंपियाड का जो फर्स्ट लेवल रहता है उसमें मतलब कैसे क्वेश्चन आते हैं, कौन सा बुक करना चाहिए उसका? उसके लिए जो तुम जेई के लिए कर रहे हो वो कर रहे हो, जो तुम्हारी नॉर्मल प्रेप हो रही है वो हो रही है, उसके अलावा तुम इरोडोव कर लो. और सर बस डीसीपी काफी होता है क्या, या डीसीपी एनफ नहीं है? डीसीपी भी काफी होता है, और वो कर लो. वो पीछे के इसका जो पास्ट पेपर्स है ना वो सारे देख लो. हाँ सर ठीक है, उसका एक बुक आता है वो. सर इन जनरल जेई में भी अगर हम लोग ने कुछ और नहीं किया, बस डीसीपी किया तो चलता है क्या, या एचसी वर्मा लोग बोलते करना चाहिए? करना चाहिए. आई थिंक जेई के लिए तो एचसी वर्मा कर लेना चाहिए. ओके सर ठीक है. इट हेल्प्स बिकॉज कुछ कुछ छोटे मोटी चीजें होती हैं जो फिल हो जाते हैं गैप्स उसको करने से. ओके सर. तो कर लो तो बेटर रहेगा. अगर तुम्हें ज्यादा एचसी वर्मा में ये है कि थोड़ा सा सेलेक्टिवली कर सकते हो, अगर टाइम का क्रंच है और करना है, तो मे बी व्हाट यू कैन डू इज यू कैन स्किप द शुरू का प्रॉब्लम्स, क्योंकि वो बेसिक रहते हैं बहुत, तो पीछे से स्टार्ट कर सकते हो और वर्क योर वे टू द पॉइंट वेयर यू फील लाइक हाँ ठीक है समझ में आ गया. प्लस ऑल्सो एचसी वर्मा की जो सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं वो भी कर लो ट्राई. ठीक है, तो वो भी एक्चुअली मैंने वो बुक में देखा था कि डीसीबी में थोड़े क्वेश्चन के टाइप ऐसे सेग्रीगेटेड करके दिए हुए थे, तो वो फॉलो करना स्टार्ट कर लिया. सेग्रीगेट करके है उसमें. नहीं, डीसीपी भी अच्छा है वैसे प्रैक्टिस के लिए, जेई के प्रैक्टिस के लिए डीसीपी इज आल्सो क्वाइट गुड. आई एम जस्ट सजेस्टिंग कि अगर तुम टाइम निकाल सकते हो तो एचसीवी भी कर लो. हाँ सर ठीक है ना. ठीक है, चलो फिर खत्म करते हैं आज के लिए. ऑलराइट, ओके. थैंक यू सर. थैंक यू ऑल. बाय बाय. गुड नाइट.